Good morning, students. Today we'll continue our chapter number 6. Chapter number 6, water and its circulation. In our previous class, we studied about the waves. Now, we start our chapter from page number 139 from tsunami. The term tsunami comes from the Japanese word tissue, which means harbor, and nami means wave. Traditionally, tsunami is referred as a huge tidal wave. Tsunami was caused by earthquake both on land and underwater, volcanic eruption on the ocean floor, and the underwater explosion and landslides. As these waves approached the coast, they built up in height and upon striking the land caused massive destruction. Now what is tsunami? Tsunami is a Japanese word. Tsunami एक Japanese word है. Su means होता है harbor and nami means होता है wave. The waves which are caused in the harbor, जो harbor के आसपास आते हैं, they cause lot of destruction. इन्हें हम tidal waves, huge tidal waves को भी कह सकते हैं कि huge tidal waves are also known as tsunami. Tsunami, why tsunami occurs? क्यों आती है tsunami? Tsunami are caused if there is an underwater volcanic eruption or earthquake. कि underwater ocean water के नीचे if there is any volcanic eruption होता है या earthquake आता है, then the ocean water जो होता है वो huge waves के रूप में ऊपर की तरफ उठता है, height में उठता है, and the ocean waves जो होती है massive ocean wave, बहुत बड़ी बड़ी waves निकलती हैं पानी में से, and that cause massive destruction, जो बहुत ज़्यादा destruction बर्बादी करती हैं, that is known as tsunami. उसे हम कहते हैं tsunami. Next one is tides. Tides are the periodic rise and fall of the water level in the sea, which occurs regular interval twice a day. When the level of the sea water rises, it is high tide, and when the level falls, it is low tide. Tides are caused by the gravitational pull of the sun and moon. The moon expects the larger gravitational pull than the sun, even though it is smaller in size. This is because the distance between the earth and the moon is less compared to that between the. Now what is tide? Tide क्या है? Tide एक periodic rise and fall है. Periodic एक regular interval पे वो sea ocean water का rise होना and then fall. That is known as tide. उसे हम tide कहते हैं. When the water level increases, जब water level rise होता है, ऊपर की तरफ जाता है, that is known as high tide. उसे हम कहते हैं हाई टाइड. एंड व्हेन वाटर फॉल्स, ऊपर जाने के बाद जब पानी नीचे की तरफ वापस आता है, फॉल्स होता है, तब उसे हम कहते हैं लो टाइड. बेसिकली जो टाइड्स होते हैं दे आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून. सन और मून की जो ग्रेविटेशनल पुल होती है उसके कारण ही टाइड्स आते हैं. जो मून होता है उसका ग्रेविटेशनल पुल सन के कंपैरिजन में ज़्यादा है बिकॉज इट इज़ नियरर टू द अर्थ. मून सन से छोटा है, स्मॉलर इन साइज है, बट उसका जो डिस्टेंस है बिटवीन द अर्थ एंड मून, अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून. अर्थ एंड सन, अर्थ और सन का अगर डिस्टेंस देखें तो बहुत ज़्यादा है और अर्थ और मून का डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए मून का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ पर ज़्यादा वर्क करता है. नाउ स्टूडेंट, अ केस स्टडी बॉक्स इज गिवन हियर इन विच अ पिक्चर यू कैन सी. This is the picture of tsunami. Tsunami wave that struck the Pacific coast of Tohoku in northeastern Honshu, Japan in 11 March 2011. 2011 में जापान में tsunami आई थी. उसकी pictures हैं यहाँ पे. And the magnitude of this, इसका जो magnitude था वो 9.0 on Richter scale. Richter scale पर उसे 9 magnitude मापा गया था, which is very destructive, जो बहुत ज़्यादा destructive होता है. तो एट दैट टाइम द सुनामी कॉज डिस्ट्रक्शन इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जापान. जापान का जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था. मोर देन 15,000 कैजुअलिटीज़ हुई थी, इतने सारे लोग मारे गए थे. एंटायर टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय, पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो गया था. पोर्ट्स वर डिस्ट्रॉयड एंड डैमेज टू द एरिया, पूरा एरिया उसमें डैमेज हो गया था. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जो नेटवर्क सिस्टम थे, दे ऑल वर स्पॉइल्ड, पूरी तरह बर्बाद हो गए थे, फ्लडेड हो गए थे, पानी में डूब गए थे. तो दिस इज अबाउट द केस स्टडी बॉक्स.
नाउ स्टूडेंट्स, एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट टाइड्स, हम टाइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सन एंड मून आर, टाइड्स क्यों होते हैं? टाइड्स होते हैं सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। और मून का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ पर सन के कंपैरिजन में ज़्यादा वर्क करता है बिकॉज मून इज मच क्लोजर टू द अर्थ। द हाइट ऑफ द टाइड इज नॉट सेम every day in the month. It depends upon the relative position of moon and the sun with respect to earth. कि जो टाइड्स की जो हाइट है वो हर बार सेम नहीं होती है महीने में। इट डिपेंड्स, वो डिपेंड करती है मून की पोजीशन, सन की पोजीशन और अर्थ की पोजीशन, कि इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, उस पर डिपेंड करती है हाइट ऑफ द टाइड। नाउ ड्यूरिंग द फुल मून, जिसे हम फुल मून को कहते हैं पूर्णिमा, कि ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून को कहते हैं अमावस्या, कि ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून द अर्थ, मून एंड सन आर एट द सेम स्ट्रेट लाइन, कि इन दोनों दिनों में, पूर्णिमा में और अमावस्या में, सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। द मून एंड सन देयर कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल इन द सेम डायरेक्शन, और मून और सन अपनी जो कंबाइन, दोनों मिलकर अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल पुल इनका आता है सेम डायरेक्शन, और वो वेव्स को, जो ओशन वेव्स, वाटर होता है, उसको अपनी ओर ग्रेविटेशनल पुल से खींचते हैं एंड उससे हाई टाइड्स आते हैं। दीज आर नोन एज स्प्रिंग टाइड्स रिजल्टिंग द हाई टाइड्स, उसे कहते हैं हम हाई टाइड्स, जब बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है दोनों का। इन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून में मून, द सन एंड मून आर राइट एंगल विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, कि थर्ड और फर्स्ट क्वार्टर में जो सन और मून है वो अर्थ के राइट एंगल में होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, एंड ईच अदर ग्रेविटेशनल पुल रिजल्टिंग द वेरी लो टाइड्स, और उसमें बहुत कम हल्के टाइड्स आते हैं जिसे हम कहते हैं नीप टाइड्स। ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइड्स। टाइड्स आर यूजफुल टू अस मैनी वेज, टाइड्स हमारे लिए यूजफुल भी हैं। कैसे हैं यूजफुल? ड्यूरिंग हाई टाइड व्हेन द वाटर लेवल नियर द कोस्ट राइजेस, big ships can easily enter or leave harbors. The Kandla port in Gujarat is a good example of tidal port. जब हाई टाइड आता है यानी पानी बहुत ज़्यादा ऊपर उठता है, वाटर लेवल नियर द सी कोस्ट, समुद्र के आसपास का जो वाटर लेवल है इट राइजेस, वो राइज हो जाता है, और दैट्स वाई जो बिग शिप्स, बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो इजीली अपना हार्बर छोड़कर इजीली समुद्र में, ओशन में एंटर कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है द कांडला पोर्ट विच इज़ इन गुजरात। देयर इज अ टाइडल पोर्ट, ये टाइडल पोर्ट है। सेकेंड वन इज टाइडल वाटर वॉश अवे द सिल्ट डिपॉजिट फ्रॉम द माउथ ऑफ बिग रिवर्स एंड कीप देम ओपन फॉर वेसल। दूसरा है कि व्हेन टाइड्स कम, जब टाइड्स आते हैं तो ड्यू टू टाइडल वाटर के कारण, टाइडल वाटर जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और वो जब डाउन होती है, तो वो जितना भी ओशन के साथ पास में जो सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है, जो रिवर वाटर अपने साथ लेकर आती हैं डिपॉजिट, जब वो ओशंस के साइड में डिपॉजिट हो जाता है, तो वो टाइड्स उन सब डिपॉजिट्स को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और उस एरिया को पूरा क्लीन कर देते हैं। थर्ड वन, टाइड्स हेल्प इन फिशिंग टू। टाइड्स हेल्पफुल हैं फिशिंग में। ड्यूरिंग हाई टाइड व्हेन द वाटर लेवल राइजेस, मोर फिश कम नियर द शोर्स, कि जब हाई टाइड्स आते हैं, जो फिशेस होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ, जो पानी के साथ बहुत सारी मछलियाँ हैं जो शोर्स पर, किनारों पर आ जाती हैं, और बहुत सारे मछुआरे उस मछलियों को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जब टाइड्स आते हैं, जब पानी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। टाइडल पावर स्टेशन हैव बीन सेटअप इन कनाडा, जापान एंड फ्रांस। तो फ्रांस, जापान और कनाडा ने टाइडल पावर स्टेशंस बनाए हैं जो टाइडल एनर्जी को, वाटर, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसको जनरेट करने के लिए, पानी से बिजली बनाने के लिए। तो टाइड्स आर वेरी हेल्पफुल इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट इज ओशन करंट्स। Ocean currents are the stream of ocean's water continuously flowing in definite direction. They are caused by the action of planetary winds on the surface of the ocean and differences in the temperature, salinity and density of the water. The rotation of the earth and the shape of the coastline control the movement of the ocean currents and modify their course. Now ocean currents आर स्ट्रीम ऑफ ओशन। ओशन करंट क्या है? स्ट्रीम, यानी वो स्ट्रीम, वो धाराएं जो ओशन
वाटर को कंटिन्यूसली मूव, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कराती हैं। और ओशन करंट्स कब आते हैं? जब विंड्स चलती हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिटरी विंड्स मूव करती हैं ओशन के ऊपर से, और डिफरेंस इन टेम्परेचर, और उस एरिया के टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तब आते हैं ओशन करंट्स। इसके अलावा सैलिनिटी यानी वहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितना है, वाटर में डेंसिटी यानी वाटर में मिनरल का अमाउंट कितना है, ये सारी चीज़ें भी ओशन करंट को डिसाइड करती हैं। द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड द शेप ऑफ कोस्टलाइन, सम मोर फैक्टर्स आर देयर। द रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेट कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, अर्थ कितनी स्पीड से कर रहा है। शेप ऑफ कोस्ट लाइन, उस कोस्ट लाइन का शेप क्या है। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट, ये सारी चीज़ें हैं जो ओशन करंट के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं और उसे मॉडिफाई करती हैं। Ocean currents move clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. ओशन करंट्स मूव करते हैं क्लॉकवाइज, यानी जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है, क्लॉकवाइज मूव करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर. Ocean currents are usually narrow and move swiftly at the speed of 3 to 10 kilometers per hour. Broad, slow-moving masses of water in the ocean are called drifts. The ocean currents that flow from the equatorial region towards the polar region are warm currents, Gulf Stream, North Atlantic Drift, and Kurosawa. On the other hand, the currents that flow from polar region towards the equatorial region are cold currents. Venezuela currents, Peru current and Oya-Shio. Now students, the ocean current जो होते हैं वो बहुत swiftly move करते हैं, आराम से move करते हैं. They are not as the tsunamis, वो tsunamis की तरह move नहीं करते, destructive नहीं होते. They move slow moving streams होती हैं और इनकी speed 3 to 10 kilometers per hour है. Ocean current flow करते हैं. Those ocean current will move from equatorial region to polar. जो इक्वेटर से पोलर की एरियाज की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इक्वेटर में कैसे होता है, वार्म होते हैं, गर्मी होती है, तो इक्वेटर से पोलर की तरफ मूव करते हैं, वो होते हैं वार्म ओशन करंट्स, यानी उन्हें हम वार्म ओशन करंट कहते हैं. पानी वहाँ गर्म होता है. ठीक है, इसके एग्जाम्पल दिए हैं गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और कुरोसाओ, ये हैं वार्म ओशन करंट के नाम. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर थिंग, दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि अगर ओशन करंट मूव कर रहे हैं पोलर रीजन टू इक्वेटेरियल, पोलर कौन से रीजन है, कोल्ड हैं, ठंडे होते हैं पोलर रीजन्स, तो पोलर रीजन से इक्वेटेरियल रीजन की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो होंगे कोल्ड ओशन करंट्स. वो होंगे कोल्ड ओशन करंट जिनके एग्जाम्पल्स आर गिवन है, वेनेजुएला करंट, पेरू करंट एंड ओया-शाओ. दीज आर द 3 कोल्ड ओशन करंट्स. Now effects of ocean currents. Ocean current influence the climate and human activity of the coastal region in number of ways. Ocean current influence करते हैं, प्रभावित करते हैं क्लाइमेट, किसको, क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ द कोस्टल रीजन. द पीपल हु लिव नियर द कोस्टल रीजन, वहाँ के क्लाइमेट को, उनकी एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं. फर्स्ट, warm ocean current raise the temperature of the coast while cold ocean current lower the temperature. Now it is clear, if the ocean current is warm, अगर warm ocean current है तो it will raise the temperature, वो temperature को क्या करेगा, raise करेगा, बढ़ा देगा. And cold ocean current will lower the temperature. Second, winds that blow over the warm ocean currents are moist and bring rainfall to the coastal region. Winds that blow over cold ocean currents are dry and hence do not cause any rain. Now winds that blow, कि वो हवाएं जो वार्म ओशन करंट के ऊपर चलती हैं वो मॉइस्ट एयर होती हैं, उनमें नमी होती है और वो जब आगे बढ़ती हैं तो वो रेनफॉल करती हैं कोस्टल रीजन में. इसका अपोजिट है कि विंड्स दैट ब्लो ओवर कोल्ड ओशन करंट, कि वो हवाएं जो कोल्ड ओशन करंट के ऊपर मूव करती हैं, दे आर ड्राई, वो ड्राई होती हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं होता है, हेंस दे डू नॉट कॉज एनी रेन, और वो किसी भी तरह का रेनफॉल नहीं करती हैं. थर्ड, in places where warm and cold current meet, plenty of planktons are found. These are the excellent food for fish. Hence, such regions are important fishing grounds. However, the mixing of warm and cold currents produce dense fog for these regions. It reduces visibility and dangerous for ships. कि
सम प्लेसेस आर देयर, कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे कोल्ड और वार्म ओशन करंट आपस में मिल जाते हैं, कोल्ड और ओशन, वहाँ पे एक प्लेंटी ऑफ प्लैंकटन, वहाँ पे प्लैंकटन ग्रो करता है। प्लैंकटन क्या है? एक फूड है जो फिशेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। दैट इज़ एक्सीलेंट फूड फॉर फिशेस, मछलियों के लिए बहुत अच्छा फूड है। और इसीलिए तो वो रीजन जहाँ पर कोल्ड और वार्म ओशन करंट मिलते हैं वो फिशिंग के लिए बहुत अच्छा एरिया है, क्योंकि ज़्यादातर फिश उस एरिया में पाई जाती हैं। द मिक्सचर ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट, अगर वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिल जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फॉग, ठंडा और गर्म जब मिलते हैं तो वो फॉग जनरेट करते हैं बहुत ज़्यादा, और विच इज़ वेरी, जिससे विजिबिलिटी जो होती है वो, फॉग से आपको पता है विजिबिलिटी दिखाई नहीं देता सामने, एंड विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर द शिप्स, और शिप्स चलाने के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। ओशन करंट इन्फ्लुएंस नेविगेशन, ships sail in the direction of the current will sail faster and save time and fuel। कि ओशन करंट नेविगेशन के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, कि इफ़ द यू आर सेलिंग द शिप, अगर आप शिप को उसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं जिस तरफ करंट मूव कर रहा है, जिस दिशा में वो लहर जा रही है, तो वो बहुत ईजी होगा, आप जल्दी से सेल कर जाओगे, जल्दी से चले जाओगे, और उसका आपका टाइम और आपका फ्यूल दोनों ही सेव होते हैं इससे। Okay, these are the some effect of ocean currents. Now students, chapter is over. I think all of you understood the chapter. This is very easy chapter to understand. Thank you very much and have a nice day.